Good morning, everyone. In the last class, we covered the mechanism of SN1 reaction, and we also write some points related to SN1 mechanism. Those points are, the first point was SN1 mechanism is a two-step process. The second point was the rate law of SN1. Then we write the energetics. In the third point, we write the energetics of SN1 reaction, and in the fourth point, we cover all the factors which affect the rate of SN1 reaction. Is it okay? Now come to the point number 5. That is molecularity is 1. Molecularity of SN1 reaction is 1. That's why we call it unimolecular. तो molecularity 1 कैसे हो रही है? तो we know that this is RDS and you also know molecularity मतलब क्या होता है? जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रिएक्शन में रिएक्टेंट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलेकुलरिटी बोलते हैं. क्लियर है? तो हमने जो रेट लॉ लिखा था, अगर मैं रेट लॉ लिखूं फिर से, रेट विल बी के इंटू मल्टीप्लाई बाय के ऑब्जर्व लिखा है. पॉइंट नंबर 2 यू कैन चेक. पॉइंट नंबर 2 के ऑब्जर्व एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. नाउ टेल मी हाउ. So what I was saying that rate of the reaction, in the rate law there is only one molecules, only one reactant is participating. Is it okay? Means in the RDS step only one reactant is participating. That's why molecularity will be 1. If molecularity is 1, so we call it unimolecular. Is it okay? Why we call it unimolecular? As unimolecular nucleophilic substitution. So we call it unimolecular because molecularity of SN1 reaction is 1 and it is nucleophilic substitution. That's why I call 1 represent unimolecular, N represent nucleophile and S represent substitution. Clear है? Means unimolecular nucleophilic substitution reaction. Unimolecular nucleophilic substitution reaction. Is it okay? So इसको यूनिमोलेकुलर क्यों कहा गया? ये क्लियर हुआ क्योंकि इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या आ गई? 1 आ गई. क्लियर है? नोट करें इस वाले को. Now the next point is the rearrangement of carbocation. The carbocation which will form in step 1 that can rearrange, because we know carbocation is the only intermediate which can rearrange. So we can write rearrangement of carbocation means carbocation formed in step 1 can rearrange. ओके, मतलब क्या है? जो कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में बनेगा वो रीअरेंज कर सकता है. तो रीअरेंजमेंट कब होगी ये चीज आपको अच्छे से पता है. रीअरेंजमेंट के लिए क्या चाहिए? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए. तो हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे तो किस तरह से रिएक्शन हो रहा है और कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है. तो आई एम रिमूविंग दिस एग्जांपल एंड जस्ट एडिंग दैट we have CH2 and Br. Now we have to conduct SN1 reaction along with OH minus and CH2O. Is it okay? And this is SN1 mechanism. We are considering that this is SN1 mechanism. कि SN1 mechanism से reaction हो रहा है. तो कार्बोकैटायन का rearrangement कैसे होगा हम उस चीज को देखेंगे. In the first step, ionization of reactant will occur. In the first step, reactant will ionize. Since reactant will ionize, then we will get a primary carbocation CH2 plus and Br minus. Now see this carbocation, see this one. What can happen if we see this carbocation? If we have this carbocation at this carbon, if we have carbocation at this carbon, then what will be the number of hyperconjugation? We will have 2 hyperconjugation here.
and 3 and 3 6 means 8 hyperconjugation. Just count number of hyperconjugation available here for this carbocation is 0. Is it okay? इस कार्बोकेटाइन के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेशन कितना है? 0 है. नाउ गो फॉर रीअरेंजमेंट. If we go for rearrangement, what will happen? CH3. One second, mic is not working good. So what will happen? This carbocation will rearrange and we have 3 methyl group. One methyl group migrate to this carbon. Now what will happen? We will have carbocation available here and CH3, CH2 and this methyl group will be available here. That is okay. Means this carbocation can rearrange. तो क्या बोला कि SN1 में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है एंड कार्बोकेटाइन इज द ओनली इंटरमीडिएट व्हिच कैन रीअरेंज. और रीअरेंजमेंट के लिए कंडीशन क्या था कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए. तब यहाँ पे काउंट करो 3 हाइपरकंजुगेशन और 2 हाइपरकंजुगेशन. यहाँ पे कितने हैं? 8 हाइपरकंजुगेशन. कितने थे वहां पे? 0 हाइपरकंजुगेशन. तो स्टेबिलिटी इंक्रीज किया या नहीं किया है? मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. मतलब ये रीअरेंज कर सकता है. तो वही लिखा यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्म इन द स्टेप 1 कैन रीअरेंज इफ पॉसिबल. अगर पॉसिबल है. अब पॉसिबल है का मतलब क्या हो गया? अगर उसको रीअरेंज करने का कंडीशन अवेलेबल हो जाए तो क्या करेगा? रीअरेंज कर जाएगा. रीअरेंज करने का कंडीशन ही क्या है? स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए. क्लियर है? तो ये यहां से यहां पे आ गए. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया. तो अब की बार न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर देगा? इस वाले पे अटैक कर देगा. क्लियर है? तो प्रोडक्ट के तौर पे क्या आ जाएगा? CH3 C and CH3. Here we have OH, CH2 and CH3. क्लियर है? पॉइंट नंबर 6 क्लियर है? ओके, नोट करिए इस वाले को. Now the 7th point is the stereochemical aspect. See the stereochemical aspect. Well, what can we do for the stereochemistry of SN1 reaction? Okay. Now in the first state, carbocation will form. I am writing the carbocation which will form here. CH. Here we are writing CH3 and here we have C2H5. C2H5 and we have H. These three molecules, these molecules will form. This intermediate will form. Now see what is the hybridization of carbon here. Now it have sp2 and here we have sp3. Now if we see the configuration or its geometry, what will happen? I'm just writing like this. So I'm writing like this, that we have hydrogen here and we have ET. I'm writing ethyl as ET and we are writing methyl here CH3 and making it planar. देखो मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ. ये इसको बिलो द प्लेन रखा और इस वाले को हमने अबव द प्लेन कर दिया. मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा. और यहाँ पे प्लस चार्ज. स्ट्रक्चर कैसा है देखो, एज्यूम करके देखो. ये क्या है? मैं ना ब्लू से H को रिप्रेजेंट करता हूँ एंड ग्रीन विल बी इथाइल एंड ब्लैक विल बी मिथाइल. करेक्ट? तो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है? इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा. ओके, दिस विल बी द स्ट्रक्चर. इट विल बी इन द प्लेन ऑफ बोर्ड. ये जो है हमारा हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है. दिस इज मिथाइल. दिस इज मिथाइल ना. ओके, एक्सचेंज इट. ओके, so this is the methyl that is above the plane and this is ethyl that is below the plane, but geometry will be like this. This is planar. correct? क्या है? planar है. molecules क्या होगा? plane है. मतलब ये इस टाइप से है. इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है और इधर ये आ गया. क्लियर है? that is planar geometry. is it okay? now in the second step, when nucleophile will attack, the nucleophile have two different way to attack. One, it can attack from above side and the next it can attack from below side. It can be done. One time it can attack from this side, one time it can attack from this side. Now see, when it will attack from above side, so what will happen? I am saying these two, writing these two. Okay, just wait.
So what I say, when it will attack from above side, all these will go down, this will be go down and this will be go down. This will be the structure. Is it correct? Means क्या हो रहा है कि जब ये ऊपर से above साइड से अटैक करेगा तो कार्बन above साइड से OH और ये H क्या होगा, रिपल्सन देगा तो H नीचे के साइड आ जाएगा. ये इथाइल जो है below the plane, but this time it will be below side and this will be like this. Okay, that is CH3. I am writing it Me, not CH3, methyl Me. Okay, मिथाइल को ही Me बोलते हैं. करेक्ट है. तो this will be the structure. Correct. Now if it will attack, now see, now if it will attack from below side, below the plane, then what will happen? तो अगर ऊपर से अटैक किया तो सभी को रिपल्सन मिला. किधर गए सभी? पीछे के साइड में. क्लियर है? पीछे के साइड में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. अब अगर ये नीचे से अटैक कर रहा है तो रिपल्सन से सभी ऊपर आएंगे. तो मैं नीचे की साइड से इसका अटैक कराता हूं और तो ये क्या होगा, अबव. ये क्या होगा, थोड़ा सा अबव. ये भी क्या होगा, थोड़ा सा अबव. और बिलो द प्लेन क्या लग जाएगा यहाँ पे, सॉरी, इस टाइप का स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा. क्लियर है क्या? ये ग्रुप जो OH है बिलो द प्लेन, ये थोड़ा सा अबव, ये भी थोड़ा सा अबव और ये भी थोड़ा सा अबव और ये बिलो द प्लेन. करेक्ट है? इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा. करेक्ट है ये वाला. तो देखो अब की बार क्या किया हमने इसका अटैक कराया और इस वाले को हमने क्या किया है, H, अब की बार H ऊपर गया, OH बिलो द प्लेन, ET जो था वो बिलो द प्लेन ही है मगर अबव साइड में, और जो हमारा इथाइल है दैट इज आल्सो मिथाइल, दैट इज आल्सो अबव द प्लेन. क्लियर है? ये चीज समझा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके. अब देखो इसी में हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं. तो क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है या नहीं? तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से पहले की बात देखो, ये सेंटर क्या है हमारा, कायरल सेंटर है. अब ये सेंटर कायरल है और जो प्रोडक्ट बन रहा है हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें क्या सेंटर कायरल है या नहीं. तो ये भी कायरल है और ये भी कायरल है. क्लियर है? दोनों ही सेंटर क्या है हमारा, कायरल तो है, बट कॉन्फ़िगरेशन की बात करना चाह रहे हैं. कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज हो रहा है, मतलब स्टीरियो स्पेक्ट पे क्या चेंज हो रहे हैं. तो इस वाले को देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो प्रायोरिटी में ये फर्स्ट आएगा, ये सेकेंड आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा. रोटेशन चेक कीजिए, कौन सा रोटेशन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, और H क्या हमारा वर्टिकल लाइन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा इस वाले का, S आ जाएगा. क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S व्हेन H इज इन वर्टिकल लाइन. अगर H हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. ये चीज क्लियर है? तो यहां तक तुम समझ गए. क्लियर है? अब देखो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, कैसे होगा उसको हम यही समझा कर बताता हूं. देखो इस वाले में क्या हुआ था, इस तरह से था ना, जब ऊपर से अटैक हुआ, जब अबव से अटैक हुआ तो क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स बिलो, ये बिलो, ये बिलो. क्लियर है? अब देखो हमने क्या बोला है, दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज हाइड्रोजन, और ये हमारा क्या हो गया, OH ग्रुप. तो कॉन्फ़िगरेशन निकालते वक्त याद करें, कॉन्फ़िगरेशन निकालते वक्त हम क्या करते थे, जो फोर्थ ग्रुप था उसको बिलो द प्लेन रखते हैं. तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, फोर्थ ग्रुप हाइड्रोजन बिलो द प्लेन चला गया. अब इन तीनों की प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, इथाइल, करेक्ट, सॉरी, इथाइल से पहले ये वन, ये क्या है, OH आ गया फर्स्ट, और ये क्या हो गया सेकेंड, और ये क्या हो गया थर्ड. क्लियर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आ गए हमारे पास. तो फर्स्ट ये क्या था, इथाइल, ये क्या था, मिथाइल. रोटेशन देखो किस टाइप रोटेशन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसका रोटेशन क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज. अब दूसरे वाले का चेक करते हैं, दूसरे वाले का चेक करने चलो, मतलब मैं इसको डाउन द प्लेन से, मतलब बिलो द प्लेन से अटैक कराऊं, तो मैं इसका अटैक बिलो द प्लेन से करा देता हूं. क्लियर है? बिलो द प्लेन से अटैक कराए तो ये ग्रुप थोड़ा अबव, ये ग्रुप थोड़ा अबव, ये ग्रुप थोड़ा अबव. क्लियर है? अभी भी फोर्थ ग्रुप कौन सा है हमारा, ये वाला है. मैं फोर्थ ग्रुप को बिलो द प्लेन लेके जा रहा हूं, फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन. क्लियर है? फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है. अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा. थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, उसी जगह पे है, कुछ नहीं किया है, बस देखने के लिए थोड़ा सा चेंज किया. तो इस टाइप का आ रहा होगा. क्लियर है? अब इस टाइप का आएगा. अब चेक करें तो हमारे पास OH कौन था, ये था,
ये वाला है, और ये कौन सा है, मिथाइल, ये क्या है, इथाइल। तो ये फर्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट, ओके ओके ओके, हाँ ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अभी रोटेशन चेक करो, क्लॉकवाइज आ रहा है, पहले क्या आया था एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्या आ रहा है क्लॉकवाइज। मतलब दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है। मींस एक अगर आर बन रहा होगा, दूसरा क्या बन जाएगा एस, और ये अगर एस बनेगा तो ये क्या बन जाएगा आर, बनेगा या नहीं, क्लियर है ये चीज। मतलब अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव रोटेट करेगा लाइट को तो दूसरा क्या करेगा नेगेटिव। मींस एक आर बना तो दूसरा एस, अगर ये एस बना तो ये क्या बन जाएगा आर बनेगा। मतलब दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मतलब प्रोडक्ट में क्या मिल रहे हैं मेरे को, इनैंसियोमर मिल रहा है। क्लियर है ये बात, समझा। चलो इसको नोट करो। और देखो तो इसको हम पेपर ऑफ प्लेन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इन्वर्जन हुआ, सॉरी इन्वर्जन नहीं, मतलब कौन सा कॉन्फिगरेशन बन रहा है। अभी मैंने बताया कि रोटेशन क्या आया था, डिफरेंट डिफरेंट आया था। तब देखो मैं इसको इसका फीचर बना करके देखो क्या रोटेशन डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है या नहीं। आप ऐसे भी इसका कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हैं, आपको निकालने आता है, नहीं आपको दिक्कत है तो आप फीचर से भी निकाल सकते हैं। तो मैं फीचर से ही निकाल के बताता हूं। तो फीचर में क्या बताया था, सॉरी मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, स्पेस कम है। तो फीचर के लिए बताया है कि जो बिलो द प्लेन है, जो बिलो द प्लेन है उसको क्या करो बॉटम लाइन पे रख दिया करो। ये क्लियर है, जो बिलो द प्लेन है उसको बॉटम लाइन पे रखने। तो बिलो द प्लेन कौन है, इथाइल है, तो वी कैन राइट इथाइल है। ओके देन दोनों जो प्लेन वाले हैं, प्लेन वाले में दोनों में से कोई भी एक को टॉप पे रख देने का। तो किसको रखा टॉप पे, OH को हमने टॉप पे रख दिया। क्लियर है, यहां तक ठीक है। अब देखो, अब बताया था कि OH और H जो दूसरा प्लेन में है वो किस डायरेक्शन में है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम इस वाले को इसके पास ले जाएंगे, रोटेट करेंगे। तो किस डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। करेक्ट है, क्या आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है। तो यहां से इस कार्बन से यहां पे ले गया और रोटेट किया क्लॉकवाइज में, पहले बॉन्ड पे इस ग्रुप को रख दिया। यहां तक क्लियर है। अब बचा कौन सा है, तो मिथाइल। तो यहां पे कौन आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालो इस वाले का। कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखेंगे तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। रोटेशन क्या आ गया इस वाले का, रोटेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है। और ये क्या है, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। क्लॉकवाइज रोटेशन अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल प्लेन में होता है तो क्लॉकवाइज क्या होता है, आर होता है। और अगर हॉरिजॉन्टल में चला जाए तो उसके जस्ट अपोजिट। तो ये क्लॉकवाइज होना क्या चाहिए था, आर, मगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया हमारा, एस आ गया। ये क्लियर है, ये क्लियर है। चलो इस वाले में आ जाओ। इसका अगर मैं बनाऊं, इस वाले का अगर मैं फीचर प्रोजेक्शन बनाता हूं तो अब की बार क्या करे, ET बिलो द प्लेन मैं उसको यहां रख देता हूं। अब इन दोनों में से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, अबव द प्लेन सॉरी टॉप पे ले सकते हैं। तो मैं OH को ले लेता हूं, OH को लिया। अब देखो क्या करना है, यहां से यहां पे रखा और इससे रोटेट किया तो क्या आया हमारे, अब की बार मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया या नहीं। तो मैं इस कार्बन को यहां ढूंढा, इस कार्बन के पास OH, ऐसे हाथ रखा, रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहला ग्रुप कौन सा आया, ये वाला। मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस कार्बन पे पेन को रखा है, पेन के एक पॉइंट को इस पे रखा, एक पॉइंट को इस पे रखा, दूसरे वाले को उस बॉन्ड पे रखा। अब इसका रोटेशन करा रहा हूं प्लेन में, किधर आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। वही काम यहां करने हैं, कार्बन, ये कार्बन ग्रुप, ये वाला ग्रुप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या आ गया, ये वाला आ गया। तो यहां पे जो वैलेंसी है वहां पे हम क्या लिख देंगे, H लिख देंगे। तो बचा कौन रह गया हमारे पास, मिथाइल। तो हमारे पास मिथाइल आ जाएगा। अब निकाल के देखो इस वाले का, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। आ गए, रोटेशन देखिए क्या आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एस होता है, मगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो एस का क्या ले लोगे, आर ले लोगे। तो क्या आ गया, आर आ गया। क्लियर है, मतलब एक आर और दूसरा क्या है, एस। मींस अगर ये इसका रोटेशन, अगर इसका रोटेशन पॉजिटिव होगा तो इसका नेगेटिव, अगर इसका नेगेटिव हुआ तो फिर इसका पॉजिटिव। क्लियर है, मतलब दोनों ही आ जाएंगे, दोनों ही
दोनों ही ऑप्टिकल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। मींस रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, इनैंशियोमर एग्जिस्ट करेगा। तो देखो क्या बताया कि दोनों ही फॉर्म बन रहे हैं, तो मैंने बोला कि 50% ये बना और 50% ये बना। तो अगर दोनों ही 50-50% बने, इसका मतलब कि हाफ मॉलिक्यूल्स का ऑप्टिकल रोटेशन अगर प्लस है, हाफ मॉलिक्यूल्स का ऑप्टिकल रोटेशन अगर प्लस है, तो हाफ का क्या आ जाएगा, माइनस। अगर इसका माइनस है तो इसका क्या आ जाएगा, प्लस। मतलब दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। क्लियर है? और दोनों का परसेंटेज क्या आ रहा है, इक्वल अमाउंट में आ रहे हैं। तो आप रेसमिक मिक्सचर का डेफिनेशन याद कीजिए, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। बताया था, तो उसका सीधा सा मतलब क्या था कि 50% प्लस रोटेटरी एंड 50% माइनस रोटेटरी, दोनों अगर आइसोमर को हमने मिक्स कर दिया है तो क्या बोलेंगे उस वाले को, रेसिप्रोक मिक्सचर बोलेंगे। क्लियर है? मतलब 50-50% मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर। तो जो इनैंशियोमर हैं उसमें दोनों ही एक्टिविटी, दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले प्लस और माइनस एक्टिविटी वाले अगर सेम रेशियो में मिक्स किया है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है, रेसिप्रोक मिक्सचर होता है। क्लियर है? तो जो सॉल्यूशन होगा हमारा, जो सॉल्यूशन बनेगा SN1 रिएक्शन का, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है? क्लियर है? क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर होगा। क्लियर है? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या कर रहा है, ये कंपनसेट कर रहा है, मतलब एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिविटी को नेग्लिफाई कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्लियर है? इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग ये भी बोलते हैं कि रेसमाइजेशन occur in SN1 reaction. Resmization occur in SN1 रिएक्शन। क्या बोला कि रेसमाइजेशन हो रहा है, क्योंकि क्या बन रहा है, रेसमिक मिक्सचर का। तो रेसमिक मिक्सचर बनने का प्रोसेस ही क्या कहला रहा है, रेसमाइजेशन। मतलब क्या हो गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, हम कंपनसेट कर रहे हैं, एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। क्लियर है? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसमाइजेशन बोल रहे हैं। तो रेसमाइजेशन क्या होता है, SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है। मतलब जो एक ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही थी, दूसरा मॉलिक्यूल उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को नेग्लिफाई करेगा, मतलब न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर है? बात समझा? तो रेसमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन, ये याद रखने हैं। यहां तक समझ गए? चलो, अब एक चीज होता है रिटेंशन एंड इन्वर्जन। तो हम लोग रिटेंशन और इन्वर्जन को भी देखते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं बोर्ड को, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। रेसमाइजेशन, रेसिप्रोक मिक्सचर विल फॉर्म, मींस रेसमाइजेशन विल अकर इन SN1 रिएक्शन। अब देखना, तो अभी देखें हम लोग कि यहाँ रिटेंशन और इन्वर्जन का क्या इफेक्ट है। तो देखो रिटेंशन एंड इन्वर्जन, तो ये जो मॉलिक्यूल्स था हमने उसका क्या किया, फिशर प्रोजेक्शन बनाया। तो रिटेंशन क्या कहता है, तो जिस साइड BR है, जिस साइड BR है अगर उसी साइड न्यूक्लियोफाइल अटैच हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन बोलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि चलो ये हमारा ग्रुप था ना, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ओके ओके, तो हमने बोला क्या, न्यूक्लियोफाइल सॉरी लिविंग ग्रुप, अगर मैंने माना कि ये लिविंग ग्रुप है, BR है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये यहां से निकल रहा है, तो BR यहां से रिमूव हुआ और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो न्यूक्लियोफाइल यहीं पे आके अटैक कर रहा है, देन इट इज रिटेंशन। इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, अगर ये न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक किया तो ये सारे बॉन्ड क्या जा रहे हैं, इस तरह से चेंज हो जाएंगे, दैट इज इन्वर्जन। क्लियर है? बात समझा? रिटेंशन का सीधा सा मतलब होता है कि जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल गया है उसी साइड से क्या होना चाहिए, जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकला है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो। एंड इन्वर्जन मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जिस साइड से निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल को क्या करना होगा, उसके अपोजिट साइड से अटैक करना होगा। तो हम देखते हैं इसमें से रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट कौन सा है। तो रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट के लिए जो फिशर प्रोजेक्शन है उसको मैं इस फॉर्म में लेके आता हूं, ET टॉप पे और H बिलो। तो मुझे ET टॉप पे चाहिए इस वाले के लिए, तो मैं क्या करूं, इस वाले को फिक्स कर देता हूं।
किसी एक ग्रुप को फिक्स करके फीचर प्रोजेक्शन में बाकी तीनों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से सेम स्ट्रक्चर आता है, सेम मॉलिक्यूल्स आता है, पढ़ रखा है। चलो, तो उसी चीज को मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। इसको इधर भेजा, इस वाले को इधर भेजा और इस वाले को इधर भेजा। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे इथाइल, यहां पे OH, यहां पे H और यहां पे मिथाइल। क्लियर है? यहां पे क्या आ गया हमारे पास? मिथाइल आ गया। दूसरा इस वाले में चेंज करूं मैं, तो इस वाले में मुझे क्या चाहिए? इथाइल ऊपर चाहिए। चलो, मैंने फिर से क्या किया? मिथाइल को फिक्स किया, इथाइल को इधर भेजा, OH को इधर भेजा, इस वाले को इधर भेजा। अब चेक करो, यहां पे मिथाइल, यहां पे इथाइल, यहां पे OH और यहां पे क्या आ गया? सॉरी, यहां पे H। करेक्ट, यहां पे क्या आ गया? H आ गया। क्लियर है? अब चेक करें, सेम है, इथाइल एंड H वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए, इथाइल एंड H वर्टिकल लाइन, इथाइल एंड H वर्टिकल लाइन। अब चेक करो Br, तो जिस साइड से Br गया है उसी साइड OH है। मतलब क्या हो गया यहां पे? ये जो प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज रिटेंशन प्रोडक्ट। क्लियर है? ये क्या हो गया? रिटेंशन का प्रोडक्ट हो गया। और इन्वर्जन, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया हमारा? इन्वर्जन का प्रोडक्ट ये हो गया। क्लियर है? क्योंकि यहां क्या है? Br राइट साइड है, OH कहां है? न्यूक्लियोफाइल कहां पे आके अटैक किया है? अपोजिट साइड से अटैक किया। ये बात समझा? तो देखो, रिटेंशन और इन्वर्जन का मतलब कभी भी R एंड S कॉन्फिगरेशन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये S है। देखो यहां पे अगर ये S है और S आ जाए तो उसको रिटेंशन बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। रिटेंशन और इन्वर्जन का सीधा सा मतलब है, सेम साइड से अटैक हुआ तो रिटेंशन, अपोजिट साइड से अटैक हुआ तो इन्वर्जन। क्लियर है? क्योंकि कितने सवाल में आप आगे चलेंगे, अगर ग्रुप्स की प्रायोरिटी चेंज करती है, तो R की जगह पे R भी बन सकता है, R की जगह S भी बन सकता है। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम एग्जांपल लेकर के चेक करेंगे। क्लियर है? इसलिए आप इस चीज को नोट कर ले, वहां पे स्टार लगा के नोट कर ले। इन्वर्जन का सीधा सा मतलब है कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकला है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इन्वर्जन का मतलब है अपोजिट साइड से अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के। क्लियर है? इसका मतलब कतई ये मतलब नहीं है कि R का S बन जाए और S का R बन जाए। ये आप हमेशा ध्यान रखें। क्लियर है? ये समझा? चलो नोट करो इस वाले को। तो हमने क्या बताया कि जब भी SN1 रिएक्शन कराएंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में इनैंशियोमर मिलेगा, और दोनों क्या है? 50% बनना चाहिए। 50% ये एंड 50% ये। बट देखो, ये काफी रेयर है कि 50% दोनों ही 50-50% एकदम इक्वल रेशियो में बन जाए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये बेसिकली। सॉरी 1 सेकेंड। तो मैंने क्या बताया कि 50% ये और 50% मतलब इक्वल रेशियो में दोनों ही एनहांसोमर का फॉर्मेशन काफी रेयर होता है। ऐसा आपको काफी रेयरली ही देखने मिलेगा। बेसिकली होता क्या है, जनरली इन्वर्जन प्रोडक्ट जो होता है वो रिटेंशन प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये रेशियो जो है रिटेंशन और इन्वर्जन का जो रेशियो है, दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। जो लिविंग ग्रुप है हमारा, उसके रिमूव होने की टेंडेंसी पे डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करता है, देखो, अगर हमारा कार्बोकैटायन काफी ज्यादा स्टेबल है, सॉरी इस तरह से देखिए, कार्बोकैटायन अगर हमारा काफी ज्यादा स्टेबल है तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्या करता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दिया। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों साइड से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, सेम आ जाती है। मतलब ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी। बट अगर ये बॉन्ड थोड़ा स्टेबल हो, कार्बोकैटायन थोड़ा अनस्टेबल हो, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लग रहा है तो एक के ऊपर माइनस टेल, दूसरे के ऊपर प्लस टेल। अब देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट साइड से भी आ जाएंगे और इस साइड से भी आएंगे, दोनों ही साइड से आएंगे। मगर दिक्कत ये है कि अगर इस साइड से ग्रुप अवेलेबल अभी रिमूव हो रहा है ना,
तो इसका इसको रिपल्सन मिल जाएगा और इसको रिपल्सन देने वाला कोई नहीं है। तो जैसे ये ग्रुप रिमूव होगा तो इसका अप्रोच कर पाने की एबिलिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा ज्यादा, इसका डिस्टेंस क्या है, उससे थोड़ा सा कम। तो अटैक करने की टेंडेंसी इस वाले की उससे क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इस वजह से इन्वर्जन प्रोडक्ट बेसिकली रिटेंशन प्रोडक्ट से हमें ज्यादा आता है। हमेशा नहीं, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पे 50% एंड 50% आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, मगर रिटेंशन इन्वर्जन से ज्यादा हो जाए ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? जनरली क्या होता है, इन्वर्जन विल बी मोर देन रिटेंशन, इन्वर्जन रिटेंशन से ज्यादा होता है। क्लियर है? बात समझा? तो हमने बताया आपको कि ये इन्वर्जन एंड रिटेंशन का रेशियो किस पे डिपेंड करना है, दैट विल डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। इज इट ओके? जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेसमाइजेशन होगा, एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आप रेसमाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन की तरह बात करें तो ऐसे लिखा मिलता है आपको कभी कभी, रेसमाइजेशन 80%, सॉरी ऐसे लिख लो, 80% रेसमाइजेशन एंड 20% इन्वर्जन। इसका मतलब क्या है, समझ के बताओ इसका मतलब क्या है। 80% रेसमाइजेशन एंड 20% इन्वर्जन, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास बीकर में जो प्रोडक्ट हैं, जो SN1 रिएक्शन के प्रोडक्ट सॉल्यूशन है, अगर उसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 80% मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को नलिफाई करेंगे। क्लियर है? मतलब 80% मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, नलिफाई कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब एक का प्लस तो एक का माइनस आ रहा है। और 20% क्या है, जो एक्स्ट्रा है। मतलब ऐसे समझो कि अगर सॉल्यूशन है हमारे पास तो 60% ये बन गया। क्लियर है? 60% ये बन गया और 40% ये बन गया। क्लियर है? तो 80% रेसमाइजेशन का मतलब क्या हो गया, 80% मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिविटी को नलिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखो 40% ये है, अगर मैं मानता हूं कि ये प्लस रोटेशन दे रहा है और ये क्या दे रहा है, माइनस रोटेशन दे रहा है, तो जो 40% प्लस दे रहा है इसका इस 60 में से 40% क्या होगा, उसको नलिफाई कर देगा। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितने की वजह से आएगा, 20% से। बात समझाओ तो 20% क्या है, ओनली 20% इज अवेलेबल फॉर देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये जो 20% एक्स्ट्रा है वही 20% क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेस्ट 80% जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। बात समझा? मतलब 80% मॉलिक्यूल्स की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो आई और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी वो कितने की वजह से आएगी, 20% की वजह से। बात समझा? अगर आपको इस तरह से दे रखा है 90% रेसमाइजेशन एंड 10% इन्वर्जन, इसका मतलब क्या हो गया कि 90% मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को नलिफाई कर रहा। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 55% और ये कितना बन जाएगा, 45%। मतलब ये 45% और इसमें से 45% की ऑप्टिकल एक्टिविटी को नलिफाई किया, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कितने की वजह से आई, 10% के वजह से आ रही है। क्लियर है? बात समझा? इसीलिए हमने SN1 रिएक्शन में क्या लिखा, रेसमाइजेशन विल अकर। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है। रेसमाइजेशन हमेशा होगा SN1 में, मगर हमेशा रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा वो हम नहीं कह सकते। रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, दोनों 50-50% मतलब इक्वल रेशियो में होना चाहिए। मगर रेसमाइजेशन क्या कर रहा है कि कुछ परसेंट तक ऑप्टिकल एक्टिविटी को दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, नलिफाई कर रहा है, दैट इज रेसमाइजेशन। बात समझा? क्लियर है? क्लियर है ये चीज कि SN1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर बनता है, बट जनरली क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है जिसमें कि इन्वर्जन रिटेंशन से एक्सीड करता है। क्लियर है? हमेशा 50-50% नहीं बनता है। समझा ये बात? हमेशा 50-50% नहीं बनता है। 50% प्रोडक्ट का फॉर्म करना, 50% प्रोडक्ट का फॉर्म करना वो किस पे डिपेंड, सॉरी 50% प्रोडक्ट का फॉर्म करना क्या है, रेयर है। 50-50% फॉर्म करना क्या है, काफी रेयर होता है। क्लियर है? बेसिकली क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट रिटेंशन से ज्यादा होता है। समझ गए यहां तक? चलो नोट करो, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।